Hello everyone, warmly welcomes you back to our digital learning in TY BBA semester 5. Subject is service management, and today I am going to discuss one very important topic, that is the another topic, actually service pricing. In service pricing we are going to discuss the role of non-monetary cost today. So let's start. First of all, let's understand what is the price. As you all know, and we already had learned in our prior semesters in SYBBM, price is generally the value or the exchange value of in terms of money that I had already discussed. प्राइस क्या है? व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज द अमाउंट वी पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज. हम कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस को हम यूज करते हैं, या तो कुछ आइडियाज को हम किसी से लेते हैं, तो उनके लिए जो चार्ज होता है वो होता है प्राइस. द टर्म प्राइस इज नोन बाय अ वैरायटी ऑफ नेम्स इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जब अगर हम सर्विस के, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, the name given or are very different, or might have some different names, variety of names of price. For example, price is known as fare in the transport sector. Once we are traveling to somewhere and we pay for the fare, then that is known as the price. Whereas in education, if you are paying fees, then it is also known as the price. The name is fees, we called it generally as the fees. Whereas in real estate, if you are paying the rent, then it is also the one kind of price, the rent in the real estate. And in certain services it is known as the charges. Okay, even some charges are there, it is already the price. What else? Generally speaking, in simple words, what we can say, the price is the exchange value. What is it? Is the exchange value between the seller and buyer. So price is the money charged by a marketer for his product or services. For the marketer, price covers the total market offering. The ultimate user considers price as a sacrifice of his purchasing power. For the buyer, it stands for the quality and quantity of the service bought. Whatever we are buying, we generally looking for the reward, that is, at least we need to satisfy ourselves. That is what we are looking for, at least the quality and quantity what we spend for, that is the price. Now one very important term, that is non-monetary cost. My dear friends, where the service provider and or even the manufacturers, they all must be aware about what kind of the additional costs are being added to the price of the product or services. Here it is very important to understand about the difference between monetary and non-monetary. As you all know, monetary means it we can be measure it in terms of money, whereas some costs are there we cannot measure it. We cannot measure. That is non-monetary cost. My dear friends, you can read this paragraph and let's understand. When a customer buys a product, if you are buying a product, do please understand it well. When you are buying a product, a customer is not only spending the money. You are not only spending the money, but what we are spending along with that, he is spending the other things as well. These things are called non-monetary costs. Please remember it well. These things, कौन सी? The other things. Other things यानी what other things? Like spend from the time, convenience and efforts, or even psychological costs. So these are the different costs associated with the services. My dear friend, there are lot many examples. We will try to cover it and understand it. Before that, there are lot many types of non-monetary cost. In our today's topic, let's in exam point of view, it is very important what kind of the what are the types of non-monetary cost. So non-monetary cost represent other sources of the sacrifice perceived by the customers when buying and using a services, like what? Time cost, search cost and psychological cost often enter into the evaluation of whether to buy or
re-buy a service and may at times be more important concern than monetary price. मीन्स आप जो पैसा खर्च करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कई बार आपके लिए समय होता है। समय यानी कि आपने वो समय निकाल के किसी सर्विस का यूज किया है तो आपको उस समय का बिल्कुल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने 2-4 दिन की छुट्टी लेके कुछ काम पे आप गए हैं और किसी सर्विस एंजॉय करने के लिए आप गए हैं और शायद आपका मजाक किरकिरा हो गया है, तो वो आपने जो टाइम सेक्रीफाइस किया है वो भी आपकी एक प्रकार से कॉस्ट है। अगर मान लीजिए कि आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं और बड़ी लंबी लाइन या तो कतार लगी रहती है, तो जो टाइम आपको वेस्ट हो गया है आपका जो वेटिंग करते करते, तो वो भी एक प्रकार की आपकी कॉस्ट है जो कि दिखती नहीं है। यानी कि जो सेलर है या तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ये कॉस्ट जितनी भी कम हो सके उतनी करनी चाहिए। यानी कि कस्टमर को कंफर्ट देना चाहिए और उनकी कन्वीनियंस देखनी चाहिए, कम समय में सर्विस मिल जाए वैसी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि टाइम कॉस्ट आखिरकार में क्या होता है। व्हाट जिटमल थिंग्स अबाउट दिस जिटमल एंड लियोनार्डो बेरी एंड लवलॉक आर द ऑथर्स। यू मस्ट रिमेंबर द नेम्स इन स्पेशली इन दिस सर्विस मैनेजमेंट। Most services require the direct participation of the consumer and thus consumer real time, यानी कि टाइम वेटिंग एज वेल एज टाइम व्हेन द कस्टमर इंटरैक्ट्स विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये होता है टाइम कॉस्ट। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट यू मेक टू एक्सरसाइज, see a physician, or get through the crowds to watch a concert or baseball game. Not only you are paying money to receive these services, but you are also expending the time. आपने टाइम भी आपने इन्वेस्ट किया है। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, अगर वहां बहुत लंबी लाइन है या तो वेटिंग है, इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। तो ये भी एक प्रकार की कॉस्ट है, प्लीज समझ लेना। टाइम बिकम्स अ सेक्रीफाइस मेड टू रिसीव द सर्विस, यानी कि आपको सर्विस चाहिए इसलिए आपने अपने समय का बलिदान दिया है, यानी कि सेक्रीफाइस किया है, तो ये होता है टाइम कॉस्ट। फर्स्ट, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट कंप्लीटली कंट्रोल द नंबर ऑफ कस्टमर्स। मैंने बताया ना आपको कि अगर ये परिस्थिति कब पैदा होती है, जब कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो कंप्लीटली कंट्रोल करने में नाकामयाब रहता है, यानी कि नंबर कस्टमर्स को सर्व करने में अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं पा रहा है, तो ये होता है टाइम कॉस्ट बढ़ जाता है। द लेंथ ऑफ द टाइम इट विल टेक फॉर ईच कस्टमर टू बी सर्व्ड। Customers are likely to expend the time waiting to receive the services. ओके, तो बिल्कुल समझ लेना, दिस इज ऑल नोन एज टाइम कॉस्ट। नाउ वन मोर थिंग, सर्च कॉस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक स्लाइड आपको दिखा दूं। देखो, अभी हमने टाइम कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया। टाइम कॉस्ट क्या होता है? टाइम स्पेंट ऑन द सर्विस डिलीवरी। देर आर 4 काइंड ऑफ द कॉस्ट गिवन। फिजिकल कॉस्ट, यानी कि फटीग, आपको थकान महसूस होती है, आपका फिजिकल कॉस्ट भी आपने ये भी होता है कि एक प्रकार के कॉस्ट जुड़ जाता है। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है फटीग एंड डिस्कम्फर्ट फ्रॉम वेटिंग। एक होता है साइकोलॉजिकल कॉस्ट, यानी कि मेंटल एफर्ट्स टू बाय एंड यूज अ सर्विसेज। सेंसरी कॉस्ट भी होता है वो बराबर। तो अनप्लेजेंट सर्विसेज एनवायरनमेंट, यहाँ पर एग्जांपल्स है, स्मेल आती है अगर गंदी, टेम्परेचर ठीक नहीं है, या तो नॉइजी एटमॉस्फेयर है, तो ये भी आपका एक सेंसरी कॉस्ट बढ़ाता है। प्लीज याद रखें, ये 4 कॉस्ट मेन है। तो इनमें से एक ये सर्च कॉस्ट है। आप समझ लो अच्छे से, इनके अगर नाम अलग अलग है तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। सर्च कॉस्ट जो है वो एक प्रकार से आपका साइकोलॉजिकल कॉस्ट ही है, यानी कि जहां पर आपने सर्च करने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, किसी भी सर्विस को पाने के लिए आपने जो सर्च किया है, या तो कई दिनों तक आपने सर्च कर रहे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू एंड यू आर साइकोलॉजिकली यू आर वेरी मच फाइंड इट डिफिकल्ट। So when a consumer decides, see, when a consumer decides to buy a product or services, he makes efforts in searching for the best one among all the choices. This effort is called search cost and is a type of non-monetary cost. याद रखें, मैंने अभी बताया था आपको कुछ नाम, उसमें से एक लवलॉक है, बहुत ही जाने माने ऑथर है, उनका ये मानना है कि इसको हम कहते हैं सर्च कॉस्ट।
Search cost the efforts invested to identify and select among the various यानी कि alternative services you desire are also the adding यानी कि it makes a cost your higher for the services than the physical goods. All right. And one more convenience cost. ये होता है फिजिकल कॉस्ट. आगे मैंने चार जो कॉस्ट की थी इसका एक अलग नाम है फिजिकल कॉस्ट. ये भी आप कह सकते हो एक प्रकार से फिजिकल कॉस्ट. ऑल राइट. तो आगे बढ़ते हैं. कन्वीनियंस कॉस्ट क्या होता है? देर आर ऑल्सो कन्वीनियंस और परहैप्स मोर एक्यूरेटली इनकन्वीनियंस. आप समझ लो कन्वीनियंस नाम भले ही रहा लेकिन अगर कोई कस्टमर है उनको इनकन्वीनियंस महसूस होता है किसी भी सर्विस पाने के लिए तो ये प्रकार से इसका कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ सर्विसेज. इफ कस्टमर्स हैव टू ट्रैवल टू सर्विस यानी कि अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास किसी सर्विस के लिए जाते हैं they incur a cost and the cost becomes greater when travel is very difficult. अगर ट्रैवल आपका डिफिकल्ट हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है यानी कि आपका कन्वीनियंस नहीं है. एज इट इज फॉर एल्डरली पर्सन. अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए तो बहुत ही कठिन काम हो जाएगा. द इनकन्वीनियंस अ पर्सन अंडरगोज टू अवेल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड convenience cost and it is a type of non monetary cost. मित्रों एक एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर किसी डॉक्टर के पास किसी बुजुर्ग को लेके जाना है जो चल फिर नहीं सकते जिनकी उम्र हो गई है अगर मान लो कि उनको कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उनको जब आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाई महसूस होती है. उनको कैसे ले जाएंगे किस मोड पे मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा कौन सी गाड़ी में ले जाएंगे एम्बुलेंस बुलाएंगे कितनी उनको क्या तकलीफें होंगी. तो ये जो कन्वीनियंस होता है वो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया कि यानी कि यू आर sacrifice your discomfort you are find it discomfort so that is also made convenience cost. मान लो कि यही एग्जांपल को हम आगे बताते हैं कि अगर वो जो ट्रीटमेंट के लिए किसी बुजुर्ग को लेके जा रहे हैं अस्पताल में और उनको अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला है. यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम योर एफर्ट्स योर कन्वीनियंस इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इट मे कॉस्ट यू वेरी मच ग्रेटर. यानी कि आप कई बार हमारे मन में ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं कि चाहे पैसा आप कितना भी ले लो लेकिन मुझे ये जो चाहिए उतनी समय में आप दे दो और इतने कंफर्टेबली आप मुझे ये चीज करा दो. तो ये होता है एक कन्वीनियंस. अगर किसी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए भी जाते हैं तो लाइन में बिल्कुल नहीं खड़े रहते हुए अगर आप सीधे दर्शन कर लेते हैं डायरेक्टली भले ही आपने पेमेंट दिया तो एक प्रकार से ये भी आपका कन्वीनियंस कॉस्ट है. यानी कि अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है तो ये आपका कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाता है. हर एक सर्विस प्रोवाइडर को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है मित्रों ये समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ सर्विस अर्स डू नॉट coincide with the consumer's available time they must arrange their scheduled or to correspond to the company's schedule. दिस कॉज इनकन्वीनियंस. अगर कंपनी का टाइमिंग मान लो कि ऐसे बहुत ही ऑड टाइमिंग में कई बार कुछ सर्विस प्रोवाइडर अपने टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं तो ये शायद अच्छी बात नहीं है. कंज्यूमर के कन्वीनियंस के साथ ही आपको अपना टाइमिंग सेट करना चाहिए. एक होता है साइकोलॉजिकल कॉस्ट. चलो फटाफट देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होता है. ऑफन द मोस्ट पेनफुल नॉन मॉनेटरी कॉस्ट आर द साइकोलॉजिकल कॉस्ट इनकर्ड रिसीविंग सम सर्विसेज. फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग. कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिसी आप लेते हैं इंश्योरेंस की और आपको बहुत डर लगता है कि शायद ये पता नहीं कैसे काम करेगा. किसी के कहने से आपने ले लिया है लेकिन वो क्या मिलेगा उसका क्या कितना रिवॉर्ड मिलेगा इंश्योरेंस का क्या होगा डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे ये आपको डर रहता है. तो ये आपका साइकोलॉजिकल कॉस्ट है. फियर ऑफ रिजेक्शन यानी कि बैंक के लोन के लिए अप्लाई किया है आपको बिल्कुल मन में अगर भरोसा है कि चलो हो जाएगा लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है कि साइकोलॉजिकली कि होगा नहीं होगा कुछ क्वेरी आएगी क्या आएगी वगैरह उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट. फियर ऑफ यूनिवर्स अनसर्टेनिटी इंक्लूडिंग फियर ऑफ हाई कॉस्ट. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो डर है वो आपकी कीमत हमेशा ही बढ़ा देता है.
तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या करना चाहिए कि अपने कस्टमर को जहां तक हो सके इतना भरोसा देना चाहिए कि जो कमिटमेंट आपने दिया है तो उनको बिल्कुल ज़रूर से मिलेगा। तो कई बार ये होता है कि आपने साइकोलॉजिकल कॉस्ट कम कर ली, यानी कि आपके प्राइसिंग जो है जो सेट किया है तो बिल्कुल सही से काम करने वाला है। Okay, when purchasing and using the services, this is given by the Zitman. So please remember it well. A firm needs to find the perfect balance of monetary and non-monetary cost in order to sell its product. बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना चाहिए अगर सक्सेसफुल होना है तो। This balance can be achieved by the firm itself. ठीक है, एक ये एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी शॉप ओनर में चूज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ हिज कॉफी इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट कन्वीनियंस बाय ऑफरिंग द क्रेडिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी। एक फैसिलिटी वो वहां पर डिक्लेयर कर रहा है कि अगर आप पेमेंट बाय डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। फिर अगर करना नहीं करना ये कस्टमर पे है, ठीक है। इट इज अप टू द कंज्यूमर्स whether they are willing to pay more money for the convenience or pay less money in return for extra efforts। यानी कि आपने फैसिलिटी दी है कि एक लाइन, दो लाइनें हैं, एक लाइन में 4 घंटे का वेटिंग है, एक लाइन में 2 घंटे का वेटिंग है, लेकिन 2 घंटे वाली वेटिंग लाइन के चार्जेस जो है वो शायद उनसे अलग है और ज़्यादा है। अभी वो तो आप पे डिपेंड करता है एज ए कंज्यूमर कि आपको वो सर्विस लेना है या नहीं लेना है। देखिए ये उसके कुछ उपाय है, ऑल्टरनेट है, क्या कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फर्म्स कैन डू व्हाट कैन दे डू। कंसीडर सर्च कॉस्ट, परचेज कॉस्ट एंड सर्विस एनकाउंटर कॉस्ट एंड पोस्ट परचेज और आफ्टर कॉस्ट। व्हेन यू वेर लुकिंग एट द कॉलेज, देखो ये आपकी कॉलेज का ही एक एग्जांपल है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, हाउ मच मनी, टाइम एंड एफर्ट यू आर स्पेंडिंग। आपने कितना खर्च किया, कितने समय तक इधर उधर पूछते रहे, 10 लोगों को पूछा, रेफरेंस लिया, अच्छा है नहीं अच्छा है, किसकी बात माने नहीं माने, हमने साइकोलॉजिकल कॉस्ट इन्वेस्ट किया, डिसाइडिंग वेयर टू अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो है नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। याद रखना मित्रों, यही नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वुड यू पुट इनटू सिलेक्टिंग a new cell phone, सर्विस प्रोवाइडर और अ बैंक और प्लानिंग अ वैकेशन। देखिए ये सारे एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ लेना कि कैसे नॉन मॉनेटरी कॉस्ट बढ़ता है या उसको कम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है। चलिए ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हम बहुत ही सीखते रहेंगे, अच्छे से जुड़े रहिए और जो भी टॉपिक्स हमने आगे पढ़े हैं उसको बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपका ऑनलाइन टेस्ट यानी कि MCQ को ले सकता हूँ नेक्स्ट वीक में। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।